ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ باپ بہت خوش تھا بیٹی کی پیدائش پہ۔ وہ غریب گھرانے میں آنکھ کھولنے والی ماریا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس گاؤں میں وہ پرورش پا رہی تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے، 2 بڑے اور 1 چھوٹا۔ چھوٹے بھائی کی پیدائش کے بعد ماریا کی ماں زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی ہی پرورش میں مصروف رہی اور اپنا خیال بالکل بھی نہ رکھا۔ اسی وجہ سے کمزور بھی ہو گئی اور بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ ماریا کا باپ کافی محنتی تھا، اسے احساس بھی تھا اور فکر بھی کہ اس پر 4 بچوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ کسی وڈیرے چودھری کے گھر نوکر تھا جو کچھ رقم کما کر لاتا، اس سے مشکل سے صرف 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ مالی حالات بے حد برے تھے، کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ گاؤں شہر سے دور تھا، یہاں صرف ایک ہی اسکول تھا، وہ بھی کافی دور تھا۔ ماریا کو بچپن میں ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ماں کی لاڈلی بیٹی، ماں کی شہزادی ماریا چاہتی تھی کہ اس جہالت کے مارے لوگوں میں میری بیٹی پڑھ لکھ جائے تو کسی اچھے لڑکے کے ساتھ بیاہ دوں گی۔ اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان نہیں تھا، بس ایک تھانے دار تھا، وہ بھی 7 تک پڑھا تھا۔ ماریا 5ویں کلاس میں تھی۔ ماں بہت خوش تھی، بیٹی دل لگا کر پڑھائی کر رہی ہے۔ ماریا کے بابا بھی اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، گو کہ ان کے ماریا سے بڑے 2 بیٹے اور تھے مگر لاپرواہ، آوارہ پھرنے والے۔ باپ کو فکر تھی کہ بیٹی کا مستقبل سنور جائے، لیکن کبھی کبھی حالات ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، تقدیر میں لکھا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے خواب کبھی آسمان کو چھونے کو ہوتے ہیں اور تقدیر ہم کو خاک میں فنا کر دیتی ہے۔ ماریا اسکول سے گھر آ کر بس کتابوں میں گم رہتی تھی۔ ماریا میٹرک میں تھی کہ ایک دن ماں کی حالت خراب ہوئی اور ماں ماریا کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئی۔ بیٹیاں ماں کے بنا مر جاتی ہیں۔ ماریا ماں کی میت کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ ماں، تجھے کہا تھا نا چھوڑ کر نہ جانا، تجھے کہا تھا نا میرا خیال رکھنے والا تمہارے سوا کوئی نہیں، تو بھی اماں چھوڑ گئی، اب میں کس کو ماں کہہ کے پکاروں گی۔ ماریا رو رہی تھی۔ باپ نے سینے سے لگایا، بیٹی کو دلاسا دیا۔ ماں کے بنا گھر بے رونق سا ہو گیا۔ ماریا اسکول جانا چاہتی تھی لیکن باپ نے روک دیا۔ گھر کی ذمہ داری ماریا پر آن پڑی تھی۔ کھانا بنانا، گھر کے باقی سارے کام بھی ماریا کو کرنے پڑتے تھے۔ جب تک ماں تھی تب تک ماریا نے پڑھ لیا، آخر پڑھانے کا خواب بھی تو ماں کا تھا۔ اب جب ماں ہی نہیں تو پڑھ کر بھی کیا کرنا تھا۔ ماریا اداس رہا کرتی تھی، دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، گورا سا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، لمبے سے بال، بالکل شہزادی کی طرح پیاری تھی۔ باپ گھر نہ ہوتا تو ماریا گھر سے باہر نکلتی، سبزی یا دکان سے کچھ لینے جانا ہوتا تو وہ خود جاتی، بھائیوں کو پیسے دیتی تو وہ سودا لانے کی بجائے پیسے کھا پی جاتے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن انہیں بیٹھا کر ان کے باپ نے انہیں ہر اونچ نیچ سمجھائی، زندگی میں آگے بڑھنا کیوں ضروری ہے یہ بتایا۔ باپ کے سمجھانے سے بیٹے باپ کا کچھ ہاتھ بٹانے لگے اور پہلے کی طرح وقت ضائع کرنے کی بجائے کام کرنے لگے۔ یوں کچھ پیسے پہلے سے زیادہ آنے لگے۔ باپ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور ماریا نے بھی شکر کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ ادھر ادھر منہ مارنے سے پہلے ہی باپ نے گاؤں کی ایک لڑکی سے پہلے بڑے بیٹے کی شادی کر دی اور کچھ ہی عرصے بعد چھوٹے والے کی بھی شادی کر دی۔ حالانکہ ابا پہلے ماریا کی شادی کرنا چاہتے تھے مگر وہ بس ضد رہی کہ پہلے بھائیوں کی کریں گے، وہ بڑے ہیں، پھر آپ میری بے شک کرتے۔ تیسرا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا، ابا نے اس کی بات مان لی اور ہلکے پھلکے انتظامات کے ساتھ ان کی سادگی سے شادیاں ہو گئی۔ گھر میں 2 بندوں کا اضافہ ہو چکا تھا، اخراجات بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ ماریا کے ابا ماریا کے لیے کچھ رقم چھوڑنا چاہتے تھے، انہیں بیٹی کی بہت فکر تھی۔ دل تھا کہ کوئی اچھا لڑکا ملے تو اس کو بھی جلد ہاتھ پیلے کر دیں اور اس کا بھی گھر بس جائے۔ بس دن رات یہی ایک فکر تھی۔ ابھی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ماریا کے ابو ایک دن اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ علاج کروایا جا سکتا۔ جب یہ خبر گھر پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا، خوشیوں والا گھر ایک دم ماتم والا گھر بن گیا۔ ماریا کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ غم سے بار بار غش کھا کر گر جاتی۔ اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی، آنسوؤں کے سوا اب اس کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ ماں رہی نہ باپ۔ محلے والوں نے ماریا اور اس کے بھائیوں کو بڑا حوصلہ دیا۔ وقت دھیرے دھیرے زخم بھر دیتا ہے اور وہی دنیاوی کام شروع ہو جاتے ہیں جو لگتا تھا کبھی زندگی پہلے کی طرح نہیں بسر کر پائیں گے۔ ماریا کی دونوں بھابیاں بہت تیز اور چلاک تھیں، اس کے ساتھ ساتھ چرب زبان بھی تھیں۔ انہوں نے ماریا کو گھر کی نوکرانی ہی بنا دیا، ہر وقت کاموں میں مصروف رکھتی، صفائی، برتن، کھانا بنانا، کپڑے دھونے سے اگر بیچاری کو فرصت ملتی تو اسے اپنے کپڑے استری کروانے لگتی۔ اپنی الماری بھی خود ٹھیک نہ کرتی بلکہ ماریا کو آواز دیتی کہ تم بڑے سلیقے سے کپڑے رکھتی ہو، ذرا آ کر ہماری الماری ہی ٹھیک کر دو۔ وہ بیچاری منہ سے ایک لفظ نہ نکالتی اور چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی۔
फिर यूं हुआ कि उसके छोटे भाई के लिए बड़ी भाभी ने एक अच्छा सा रिश्ता देखा। हालांकि अब शादी की उम्र मारिया की थी, मगर उसकी भाभियों को तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। वो भला कैसे उसका रिश्ता देखती। वो तो उल्टा उसे बातें सुनाती थी कि तुमसे कौन करेगा शादी, तुम ऐसी तुम वैसी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, ना आजकल के लड़के शरीफ मिलते हैं, कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, और वो ऐसा भी हो सकता है कि ससुराल वाले अच्छे ना हो, तुम्हें बसने ही ना दे तो दामन पर तलाक का धब्बा लगने से बेहतर है इज्जत से भाइयों के घर बैठी रहो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या, 2 वक्त की रोटी और चंद कपड़े, मिलते तो हैं तुम्हें सब कुछ, बल्कि तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा ही हम तुम्हें देते हैं, मगर तुम तो ठहरी नाशुक्री। इतना कुछ सुनाने के बाद दोनों आराम से अपने अपने कमरों में चली जाती और मारिया आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियाँ समेटे चुपचाप अपने कामों में मशगूल हो जाती। किसी भाई को उसकी हालत की फिक्र न थी। वो सारा दिन घर से बाहर रहते। पहले तो काम के लिए जो वक्त होता वो दोस्तों में गुजारते। बीवियों की झकझक से बचने के लिए वो सिर्फ रात को ही घर में दाखिल होते। वो सीधा कमरों में घुस जाते। कभी कभी मारिया से हाल अहवाल पूछ लेते, कभी ख्याल आ जाए तो गुजरते हुए सर पर हाथ रख देते। जिंदगी की तलखियों ने मारिया को बेहिस्सा कर दिया था। उसकी जिंदगी में रौनक ख़त्म हो चुकी थी। तन्हाई इंसान को वैसे भी बीमार कर देती है और वो सदियों की बीमार लगती थी। किसी को इसकी परवाह नहीं थी। अब घर में तीसरे भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। दोनों भाभियां सुबह बाजार निकल जाती और रात को वापस आती। सारा दिन मारिया हांडी रोटी सफाइयां करती और वो आकर खा पीकर सोने चली जाती। मारिया को एक चीज़ भी नहीं दिखाती थी और अगर कोई काम मारिया ने ना किया होता तो खूब बातें सुनाती। हालांकि मारिया नौकरों की तरह सारा दिन काम करती, वो भी बगैर उजरत के। शादी वाले दिन भी उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो किसी वक्त खिड़की से सर लगाए दूर फजाओं में देखती हुई आंसू बहाती रहती, इस उम्मीद पर कि उसकी अम्मी अब्बू उसके साथ हैं, सो खुदा यकीनन उसकी भी दुआ सुनेगा। बाहर शादी का शोर शराबा हल्ला गुल्ला था और मारिया किचन की चीज़ें समेट रही थी। दिन गुजर गया, भाई की शादी भी हो गई। सब कहके लगा रहे थे और मारिया एक कोने में उदास खड़ी हसरत से भाई की तरफ देख रही थी। इसी वक्त जो भाई दुल्हा बना हुआ था, इसकी नज़र मारिया पर पड़ी तो उसने मारिया को आवाज़ देकर बुलाया और बोला, आप उदास क्यों हैं? क्या मेरी शादी की खुशी नहीं आपको? आए तस्वीर उतारें मेरे साथ। उसने मारिया को अपने पास बिठाते हुए कहा। मारिया ज़रा सा मुस्कुराई और उसके पास ही बैठ गई। दोनों भाभियां मुंह बनाकर वहां से उठ गईं। उन्हें कब गवारा था कि मारिया, जिसे उन्होंने नौकरानी बनाकर रखा हुआ था, वो उनके बराबर आकर बैठे। मारिया ने महसूस तो कर लिया मगर चुप करके बैठी रही। आखिर भाई की बात माननी थी। चंद तस्वीर के बाद वो भाई को प्यार करते हुए उठ गई और वापस अपने छोटे से कमरे में आ गई। उसे इस वक्त रोना आ रहा था। अपने अम्मी अब्बू को बहुत याद कर रही थी। रात भी गुजर गई और सुबह वो जल्दी उठ गई ताकि सबके नाश्ते का बंदोबस्त करे। उसने वक्त पर सब कुछ तैयार कर लिया था। शुक्र किया कि सब कुछ अच्छा बना और सबने तारीफ भी की। भाइयों ने शायद पहली बार खुलकर अपनी बहन की तारीफ की होगी। शायद उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया। मारिया की नई भाभी अच्छी तबीयत की लगती थी। कभी कभी वो मारिया से खुलकर बातें करती और कभी उससे बैठकर सवाल भी करती। मारिया उससे बेतकल्फी से डरती थी क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि जब भी वो अपनी नई भाभी के पास बैठी होती है और दूसरी बड़ी भाभियों से गुस्से से देखती हैं और किसी न किसी काम से उठा देती, लेकिन मारिया को कभी कभी इस एक तरह की खुशी भी होती कि इस घर में कोई तो है जिसे मारिया भी नजर आती है। इसकी छोटी भाभी मारिया से इस अंदाज में बात भी नहीं करती थी जिस तरह बाकी दोनों करती थी। मारिया किचन में काम कर रही होती तो छोटी भाभी पूछ लेती कि मैं तुम्हारा हाथ बटा दूं। कभी कहती ये सब काम तुम अकेली करती हो। मारिया हल्के से मुस्कुरा कर कहती, जी मैं ही करती हूँ। कभी वो खाने की मेज़ पर पूछ लेती, मारिया तुमने खाना खाया है? इसकी देखा देखी भाई भी पूछने लगे थे, मारिया पहले खाना खा लो। मारिया को ये तब्दीली बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसकी दूसरी भाभियाँ उससे ज़्यादा काम करवा कर इस तब्दीली का बदला ले लेती थीं। वक्त गुजरता गया। छोटी भाभी की हमदर्दियाँ मारिया के साथ रहीं, मगर मारिया की शादी की तरफ किसी का ध्यान न था, ना ही किसी को इसकी बढ़ती उम्र का एहसास था। वो भी इंसान थी और जज्बात रखती थी। भाइयों को अपनी बेगमात के साथ हंसता देखकर, उसे सैर सपाटे पर जाता देखकर उसके अरमान भी मचलते थे। उनके कमरों से आती हल्की हल्की हंसी की आवाज़ें सुनकर उसकी हसरतें भी बैन करती थी। उसे भी अपने अंदर एक अधूरापन महसूस होता था जिसका इजहार वो किसी से नहीं कर सकती थी। बस अंदर ही अंदर कुड़ती रहती। अपनी पलकों से आंसुओं को आंखों में ही कैद रखती थी और वो आंसू इसके दिल पर गिरते रहते। मुद्दत से इन आंसुओं ने दिल पर गिर गिर कर एक बड़ा शगाफ बना दिया था जहाँ तमाम हसरतें वो दफना देती थी। बस अक्सर आधी रात को उठकर या तो माँ की तस्वीर सीने से लगाकर
गम हल्का कर रही या फिर सजदे में सर रखकर खुदा से सवाल पर सवाल करती, आंसू बहाती और मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांगती। उसकी इस हालत से घर का हर फर्द बेखबर था। अलबत्ता छोटी भाभी हमदर्दी के 2 बोल जरूर बोल देती थी या पास बैठकर हाल अहवाल पूछ लेती। लगता था उसे मारिया पर तरस आता था। मारिया ने सुना था कि छोटी भाभी ने बाकी सबको कहा था कि मारिया की उम्र बढ़ती जा रही है, इसकी शादी कर देनी चाहिए, कोई मुनासिब रिश्ता देख लेते हैं हम और इसे अपने घर का कर देते हैं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और थोड़ी देर खामोशी के बाद बड़ी भाभी बोली, हाँ भाई कर देनी चाहिए, मगर देखो ना, अगर इसकी शादी हो गई तो घर के काम कौन करेगा? मेरा तो वैसे ही 7वां महीना है और मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगी। दूसरी बात यह है कि अब अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं और कहाँ तलाश करेंगे? दुआ है कोई अच्छा रिश्ता आए तो कर देंगे, हमने कौन सा इसका अचार डालना है। बड़ी भाभी ने चला कर कहा। दूसरी भाभी बोली कि भाई मेरे तो पहले ही घुटने में दर्द रहती है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, बड़ी मुश्किल से अपना काम करती हूँ, बाकी जो सब कहेंगे वैसा कर लेंगे। ये कहकर वो तो उठकर अपने कमरे में चली गई। भाइयों ने भी खामोशी इख्तियार के रखी और ये सब सुन रही थी। वो अपने आंसुओं को छुपाती हुई वापस किचन में आ गई। अब उसे अपने बहन भाइयों से ज़रा सी भी उम्मीद न थी। अलबत्ता ये छोटी भाभी उसके लिए ज़रूर हमदर्दी रखती थी, मगर महज हमदर्दी से क्या होता है जब अमल ही कोई ना हो। इसका मतलब है मेरा कभी अपना घर नहीं होगा, शायद मैं कभी दुल्हन नहीं बनूंगी। वो बर्तन धोते धोते सोचने लगी। उदासी उसके चेहरे पर नुमाया थी। इतने में छोटी भाभी किचन में आई और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, मारिया क्या कर रही हो? इतने सारे बर्तन तुम अकेली ये सब धो लोगी? उसने मुस्कुराकर कहा, भाभी ये तो रोज़ जितने बर्तन हैं मैं तो रोज़ ही अकेली ये सब धोती हूँ। हाँ वाकई तुम बहुत काम करती हो, तुम्हारी हिम्मत है वैसे। भाभी ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मुझे तो हैरत होती है कि तुम्हें थकन नहीं होती। कभी तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुना कि मैं थक गई हूँ। सब घर के काम करती रहती हो, कभी शिकवा ना गिला किया। तुम क्यों नहीं किसी से कुछ कहती? भाभी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मारिया फिर मुस्कुराई और बोली, भाभी गिला करके मुझे क्या मिलेगा? जब पता है ये सारे काम मैंने ही करने हैं तो फिर मैं किसी से शिकवा क्या करूं और कौन मेरी सुनेगा? हाँ बस अल्लाह के आगे सारे शिकवे गिले कर लेती हूँ और उसी से ही मांगती हूँ, वो है मेरा सुनने वाला। मारिया ने बर्तनों पर हाथ तेजी से चलाते हुए कहा। गाहे बगाहे भाभी उसके पास आकर बातें करती, उसे हमदर्दी करती। मारिया को लगने लगा कि कोई है जिसे मेरा भी ख्याल है, जिसके दिल में मेरे लिए भी थोड़ी सी जगह है। मारिया को जिंदगी से कुछ उम्मीद की झलक नजर आने लगी। छोटी भाभी को देखकर उसका दिल करता कि वो उसे बहुत सारी बातें करे, मगर कामों के बोझ तले उसका सारा दिन गुजर जाता। एक दिन जब वो बर्तन धो रही थी तो छोटी भाभी आई और उन्होंने मारिया का हाथ पकड़ कर कहा कि इधर आओ, मुझे तुमसे कोई ख़ास बात करनी है। मारिया बोली, बर्तन धो लूँ फिर मैं आती हूँ। नहीं बाद में धो लेना, पहले मेरे कमरे में आओ। वो हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और कुंडी लगा दी। मारिया हैरानी से उन्हें देख रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। कुंडी लगाने के बाद उन्होंने मारिया को बिस्तर पर बिठाया और ख़ुद भी पास बैठ गई। 2 मिनट की खामोशी के बाद बोली, देखो मारिया, मैं तुम्हें हर वक्त काम करता देखती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम अकेली लगी रहती हो, कोई तुम्हारा हाथ नहीं बटाता। यकीनन तुम थक जाती हो, लेकिन किसी को भी तुम्हारा ख्याल नहीं और ना ही तुम्हारे भाइयों को है। मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है। उन्होंने 1 मिनट मारिया की तरफ देखा और फिर बोले, दरअसल मैंने सोचा है कि मेरा एक भाई दुबई में होता है, मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करवा दूंगी। मारिया की आंखें खुल गईं। वो हैरत से भाभी को देखने लगी। आप क्या कह रही हैं? आपको पता है आप क्या कह रही हैं? वो भवें चढ़ाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देखो तुम्हारी शादी की उम्र है और ये उम्र गुजरती जा रही है, बात भी भला कौन पूछता है, और भाई भाभी कब तक साथ देंगे? मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करूँगी। भाभी ने बड़े आराम से और मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वो तो ठीक है भाभी, मुझे पता है आप मेरी हमदर्द हैं और मेरे लिए अच्छा ही करेंगी, लेकिन ये तो सोचें कि ये सब कैसे होगा। भाभी और भाइयों को पता चला तो वो तो हमारा जीना हराम कर देंगे, ये नामुमकिन है। भला ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम इतना न सोचो, सब हो जाएगा, ये सब मेरा काम है, मैं कर लूँगी। मैं तुम्हारा पासपोर्ट खुद बनाऊँगी, तुम्हारे कागजात सब कुछ मैं खुद करूँगी। हाँ जो कहूँ तुम बस वैसे ही करती रहना। भाभी ने उसको दोनों कंधों से पकड़ते हुए प्यार से कहा। मारिया इसी तरह हैरत से भाभी को देखे जा रही थी और हाँ में सर हिला रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। भाभी जो कह रही है, क्या ऐसा मुमकिन है? भाभी ने उसके गाल पर प्यार से थपथपाया। सब मुमकिन है, मैं सब कर लूँगी। चलो अब जाओ और अपने बाकी के बर्तन धो लो, फिर खाने का वक्त हो जाएगा और तुम्हें अभी खाना भी बनाना है ना? भाभी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ जी हाँ।
बिल्कुल, अच्छा जाती हूँ। मारिया कुछ बौखलाई हुई कमरे से निकल गई। बर्तन धोते हुए सोच रही थी, क्या जो कुछ मैंने सुना वो सब सही है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगी? उसने दूसरे मुल्कों की तरह दुबई का नाम सुना था, वहाँ जाने का कभी सोचा न था, मगर भाभी ने एक नई सोच दे दी थी जिसके बारे में वो सोचकर हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन भाभी की यकीन दहानी से उसे कुछ तसल्ली थी कि यकीनन उन्होंने कुछ कहा ही है। बहरहाल उसने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और दोपहर के खाने का इंतजाम करने लगी। उसकी छोटी भाभी उसके कागजात तैयार करने के लिए दिन रात कोशिश में लग गई। जो वो मांगती मारिया दे देती। खामोशी से ये सब काम होता रहा। मारिया अब अच्छे दिनों के ख्वाब देखने लगी। ख्वाब में वो दुबई पहुंच जाती, जगमगाती शाहराहों पर घूमती, रंग बिरंगे खाने खाती, खुले आसमान तले आज़ादी से सांस लेती। वो ख्वाबों में बहुत दूर निकल जाती। इन ख्वाबों से निकलकर वापस जब बावर्ची खाने में और घर के कामों में लग जाती तो उसे वो पहले जैसी थकन महसूस न होती, बल्कि वो कामों को खुशी खुशी करती और जल्दी भी कर लेती। ये सब इन्हीं ख्वाबों का नतीजा था जो आजकल वो देख रही थी, या जो इसकी छोटी भाभी ने दिखाए थे। एक दिन वो हस्बे मामूल काम कर रही थी कि छोटी भाभी ने आकर कहा, हाँ जी मुबारक हो मारिया, तुम्हारा वीज़ा लग गया है, बहुत मुबारक हो। मारिया को अपने कानों पर यकीन आया, क्या वाकई आप सच कह रही हैं? उसने भाभी को झंझोड़ते हुए कहा, आहिस्ता बोलो, कोई सुन न ले। भाभी ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, ओ सॉरी भाभी। फिर दोनों भाभी के कमरे में चली गईं। भाभी ने मारिया को सारी तफसील बताई कि बस 10 दिन बाद तुम्हारी फ़्लाइट है, तुम अपना बैग तैयार करो, कुछ ज़रूरत की चीज़ें मैं तुम्हें ला दूंगी, मगर हाँ ख्याल रखना किसी को भी शक ना हो, बहुत एहतियात से काम करना। भाभी ने उसे समझाते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं मुहतात रहूंगी। अब तो मारे खुशी से हवाओं में उड़ने लगी थी। उसके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। वो जल्द से जल्द जाना चाहती थी, मगर एक डर भी था। ये खौफ था कि ये सब कैसे होगा। उसने तो कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। भाइयों ने उसे कहीं जाने नहीं दिया था। घर की चार दीवारी उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन उसने सोचा कि जो अल्लाह को मंजूर है, यहाँ से निकलूंगी तो मैं कुछ कर ही लूँगी, और वहाँ तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब मारिया रात के पहर अपनी तैयारियां करने लगी थी और अपना ज़रूरी सामान चीज़ें जमा करनी शुरू कर दी। उसकी छोटी भाभी जब बाजार जाती तो चुपके से उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें ले आती और रात को उसे पकड़ा देती कि सामान में रख लो। मारिया बड़ी एहतियात से सारे काम कर रही थी, किसी को शक भी ना हुआ। उसकी पैकिंग हो गई। 10 दिन बहुत तेज़ी के साथ गुजरे और आखिर में वो घड़ी आ गई जब उसने दुबई के लिए रवाना होना था। सुबह 3 बजे उसकी फ़्लाइट थी और उसने रात को एयरपोर्ट के लिए निकलना था। भाभी ने जाने का सारा इंतज़ाम कर दिया। कैसे किया ये तो उससे भी नहीं पता था। वो बड़ी एहतियात से सामान लेकर बाहर आई। वहाँ टैक्सी में सामान रखा, एक नज़र अपने घर पर डाली जहाँ उसकी बेशुमार यादें वाबस्ता थीं। वो कुछ उदास और फिक्रमंद थी। भाभी ने उसे तसल्ली दी और गले से लगाकर कुछ हदायत दी और अलविदा कर दिया। टैक्सी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गई। मारिया खामोशी के साथ हर गुजरते मंजर को देख रही थी। आने वाले वक्त से खौफजदा थी। न जाने कैसा सफ़र होगा, मैं कहाँ रहूँगी, कौन लेने आएगा। उसने अपने पर्स को मजबूती से पकड़ रखा था जिसमें वो पैसे थे जो भाभी ने चलते हुए उसे दिए ताकि उसके काम आए। वो इन्हीं सोचों में गिरफ्तार थी कि इतने में एयरपोर्ट आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और सामान निकाल दिया। भाभी ने किराया पहले ही उसे दे दिया था। चुनाचे मारिया रास्ता पूछ पूछ कर जहाज़ में चली गई। कुछ देर बाद जहाज़ उड़ने लगा। वो कुछ घबराई हुई थी। पहली बार जिंदगी में जहाज़ का सफ़र कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ वाली सीट पर एक और लड़की बैठी थी जिसने उसकी घबराहट को महसूस कर लिया और उसके साथ बातचीत की, उसे तसल्ली दी। इसी तरह वक्त गुजर गया और वो दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच गई। उसकी दोस्त उसके बड़े काम आई थी और उसके साथ एयरपोर्ट पर खड़ी थी। ये जगमगाती रोशनियां उसके लिए बहुत हैरान कुन थी। उसे भाभी ने बताया था कि उसे एयरपोर्ट पर लेने कोई आएगा। वो इधर देख रही थी और सोचने लगी कि कौन होगा और कब आएगा। उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। इसके साथ जो उसकी दोस्त बनी वो अपने घर रवाना हो चुकी थी। वो कुछ देर तन्हा खड़ी सोचती रही, फिर थोड़ा आगे चलकर बाहर तक आई। इतने में उसे एक औरत हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई। मारिया अचानक उस तरह किसी अजनबी के हाथ पकड़ने और साथ ले जाने पर कुछ परेशान थी। समझ न सकी तो उससे पूछा, कौन है? वो मारिया को बाथरूम के करीब ले जाकर करीब होकर बोली, आप मारिया हैं? उसने मारिया को एक तस्वीर दिखाई। मारिया देखकर हैरान रह गई क्योंकि ये मारिया की तस्वीर थी। आप कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? मारिया ने हैरत से पूछा। मैं कौन हूँ कौन नहीं, इसे छोड़े ये बताएं कि आप ज़ीशान से शादी करने आई हैं। ज़ीशान? मारिया को याद आया कि भाभी ने अपने भाई का तारुफ इसी नाम से करवाया था। मारिया ने सोचा यकीनन इस खातून को भाभी ने भेजा होगा। जी जी, मुझे इसलिए भेजा गया है, आपको भाभी ने बताया होगा। मारिया ने ज़रा जोश से पूछा। जी, यही समझ लें। वैसे मुझे ज़ीशान साहब ने भेजा है, मैं उनकी ऑफिस की सेक्रेटरी हूँ। वो मसरूफ़ थे इसलिए मुझे भेजा।
लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस लड़की ने ज़रा राजदारी के अंदाज में कहा। क्या बताना चाहती हैं, बताएं। मारिया कुछ न समझते हुए बोली। दरअसल मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देना चाहती हूँ, पर वादा करें आप इस राज को राज ही रखेंगे। वो इतना सा जुमला कहकर मारिया की आंखों में झांकने लगी। मारिया को अब बेचैनी सी होने लगी। आखिर क्या बात हो सकती है? उसने जल्दी से कहा, जी हाँ, मैं नहीं बताती, आप कुछ कहें तो। मुझे आपकी बातों से परेशानी हो रही है। वो असल में बात यह है कि आप ज़ीशान से शादी ना करें। आप भी औरत हैं और मैं भी। मैं तो इनके साथ अरसे से काम कर रही हूँ, इनकी एक एक बात से वाकिफ़ हूँ। वो कुछ देर के लिए रुकी, फिर बोली, आप सीधी सादी सी लगती हैं। शायद आपको पूरी बात बताई नहीं की और शादी के लिए यहाँ भेज दिया गया। मैं आपको बचाना चाहती हूँ, उसने मारिया के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। मारिया पूरी आंखें खोलकर उसे देख रही थी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे लगने लगा कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, मगर भाभी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो बड़ी तारीफ करती थी। इस तरह के बेशुमार ख्यालात उसके जहन में घूमने लगे। उसने खुश्क होते गले को थूक निकलकर तर्क करते हुए बोली, प्लीज़ आप क्या कहना चाहती हैं, जल्दी बताएं। ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा तो यहाँ कोई नहीं, ज़ीशान साहब के आश्रय पर ही यहाँ आई हूँ। बोले, क्या बात है? वो दरअसल ज़ीशान साहब किसी और लड़की को चाहते हैं और उनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। अरसे से दुबई में हैं। यहाँ की अय्याश ज़िंदगी से शायद आप वाकिफ़ नहीं। ज़ीशान साहब यहाँ की ज़िंदगी में ढल चुके हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यहाँ की अय्याश ज़िंदगी, इसके मायने समझती होंगी। वैसे मैं आपको लेने आई हूँ, आगे क्या करना है ये अब आपको सोचना चाहिए। वो बोले जा रही थी और मारिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या वो कोई गलत कदम उठा बैठी है? लेकिन क्यों? क्या भाभी को अपने भाई की हकीकत नहीं पता होगी, या फिर मुझे फंसाया गया है? नहीं नहीं, भाभी ऐसी नहीं है। मारिया को लगा वो चकरा कर गिर जाएगी। इसी वक्त उस लड़की ने मारिया के हाथ से उसका बैग लिया और बोली, आए चलें, सर इंतज़ार कर रहे होंगे। पता नहीं किस मुश्किल से सोचों में गुम मारिया गाड़ी तक गई और वो दोनों इसमें बैठकर रवाना हो गई। रास्ते में दोनों खामोश रहीं। मारिया अपने उठाए गए कदम पर शशोपंज में थी। क्या उसने कोई गलत तो नहीं कर लिया? घर से कदम बाहर निकाल कर अब तो वापसी के सब रास्ते बंद थे। अब तक तो भाइयों को पता चल चुका होगा कि मैं घर नहीं। अगर वापसी का सोच भी लूँ तो भाई मुझे मार डालेंगे और मैं जा भी कैसे सकती हूँ? मारिया तेज़ी से आने वाले ख्यालात से ज़हनी तौर पर लड़ रही थी। मारिया, आप ठीक है ना? इस लड़की की आवाज़ ने मारिया को चौंका दिया। जी जी हाँ, मारिया ने शीशे के बाहर देखते हुए कहा। कुछ देर पहले जो खूबसूरती उसे लुभा रही थी, ज़ीशान साहब की सेक्रेटरी की बातों से अब बेमायनी लगने लगी थी। एक अनजाना सा खौफ उसे अंदर ही अंदर डरा रहा था। वो सोचते सोचते अपने हाथ के नाखनों को दांतों से काटने लगी। इस वक्त उसे जो दुआएं याद थीं उनका विर्द उसकी ज़ुबान पर जारी हो गया। एक लंबे सफ़र के बाद एक बड़े से खूबसूरत घर के सामने गाड़ी रुकी। वो सेक्रेटरी जल्दी से उतरी और दूसरी तरफ आकर मारिया का दरवाज़ा खोला। मारिया कुछ न समझते हुए उतर गई। हम कहाँ आए हैं? मारिया ने उतरते ही सवाल किया। जनाब, आप ज़ीशान साहब के मेहमान हैं ना? तो हम उनके घर ही आए हैं। सर का यही हुक्म था। आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे जो कहा उन्हें मत बताइएगा, वरना खफा होकर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इस सेक्रेटरी ने मारिया के ज़रा करीब होते हुए कहा। हाँ जी, ठीक है। मारिया, जो कि खुद बुखलाई हुई थी, दोनों अंदर चले गए। ये बहुत खूबसूरत और बड़ा घर था। मारिया सर घुमाकर चारों तरफ देख रही थी। बहुत पैसे वाले लगते हैं। मारिया ने आहिस्ता से कहा। बिल्कुल सही कहा आपने, यही पैसा तो अय्याश बना देता है। सेक्रेटरी ने फौरन जवाब दिया। एक मुलाजिम को उसने कहा कि सर को बताओ आपके मेहमान आ गई हैं। वो चला गया और 5 मिनट बाद ही एक दरमियानी उम्र का आदमी बेहतरीन सूट में मलबूस सलीके से बाल बनाए हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और गर्म जोशी से मुस्कुराकर सलाम किया। दोनों एकदम सोफे से खड़ी हो गई। सर, ये मारिया है, इस सेक्रेटरी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, मैं समझ गया दानिया, कोई परेशानी तो नहीं हुई? इस सेक्रेटरी का नाम दानिया था। वो फौरन बोली। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तस्वीर से मैंने फौरन पहचान लिया था। पहले ये कुछ घबरा रही थी, मगर अब ठीक हैं। बैठें आप, ज़ीशान साहब ने मारिया को मुखातिब करते हुए कहा। वो तो पहले ही बैठना चाहती थी। उसके अंदर ही अंदर काम कर बुरा हाल था, मगर भाभी का सबक याद था। परदेस में खुद एतमादी बहुत काम आती है। कभी किसी पर जाहिर ना होने देना कि तुम कमज़ोर हो या तुम्हें कुछ नहीं पता। और भी बहुत कुछ समझाया था भाभी ने। दानिया, आप जाएं ऑफिस, मैं कुछ देर में आता हूँ, जाकर मीटिंग की डिटेल लेता हूँ। ज़ीशान ने दानिया को जाने का कहा। जी सर, मैं चलती हूँ, दानिया ने मारिया की तरफ देखते हुए कहा और चले गई। ज़ीशान ने मारिया का हाल अहवाल पूछा, भाभी और सब के बारे में पूछा और कहा, आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो, आराम से नाश्ता करें, आपको आपका रूम मुलाजिम दिखा देगा। नाश्ते के बाद जब तक जी चाहे आराम करें, फिर शाम में बात होती है। और हाँ, ये फ़ोन रख लें, कल ही ख़रीदा है आपके लिए। बहन ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बताया है और ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की है।
ठीक है, वो मुस्कुरा के मारिया की तरफ देखते हुए बोले। जी जी ठीक है। ज़ीशान ने मुलाजमा को आवाज़ दी जो उसे उसके कमरे में ले गई, जो काफ़ी खूबसूरत और बड़ा कमरा था। शीशे ही शीशे लगे थे। खूबसूरत फानूस, बेड आला किस्म का नक्शो निगार से सजा हुआ। एक तरफ स्टाइलिश छोटी मेज कुर्सी पड़ी थी, एक कोने में नरम सा सोफा। इतना हसीन कमरा तो मारिया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो घूम घूम कर चारों तरफ कमरे को देख रही थी और कभी आईने में अपने आप को देखती। फिर वो नरमो मुलायम बेड पर आराम से बैठ गई। मुलाजमा ने नाश्ते का कहा और वो दूसरे कमरे की सजावट देखते हुए हैरान थी, जिसे डाइनिंग रूम कहते हैं। बड़ी सी मेज पर नाश्ता लगा था, हर तरह की नेमत थी। मारिया ने इत्मीनान से नाश्ता किया और वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी, अब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। इसके दिमाग में इस सेक्रेटरी की बातें घूम रही थी। अयाश का मतलब मैं क्या करूं? क्या ज़ीशान के बारे में इसी मुलाजमा से पूछूं या भाभी से? वो नाराज़ ना हो जाएं। उनके भाई को ऐसे कह रही हूँ। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी आंख फ़ोन की घंटी बजने से खुली। इसने 2 मिनट आने वाले नंबर को देखा, फिर हिम्मत करके उठा ही लिया। दूसरी तरफ उसकी भाभी थी जो हाल पूछ रही थी। किसी अपने की आवाज़ सुनकर जो हालत होती है, इस वक्त वही मारिया की थी। उसने सब बताया और अपने घर वालों का पूछा। भाभी ने बताया काफ़ी हंगामा हुआ, बुरा भला कहा। कहती मैंने कहा आप सब ने ही उसका रिश्ता करना नहीं था, मैंने ही बगैर जहेज़ के कर दिया है, तो आप सबको क्या एतराज़ है? काफ़ी हंगामे के बाद सब सुकून में आ चुके हैं। अब बड़ी भाभी ने काम वाली रख ली है, तुम फिक्र ना करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। भाभी की बातों से उसे कुछ सुकून हुआ, मगर ज़ीशान की तरफ से वो अभी भी फिक्रमंद थी। भाभी से उसने कुछ नहीं कहा। वो खुद देखना चाहती थी कि असल बात क्या है। उसने ठान लिया जो होगा देखा जाएगा। शाम हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मारिया ने कहा आ जाएं। वही मुलाजमा चाय की ट्राली लिए अंदर आई और मुस्कुरा कर बोली, मैम शाम की चाय लाई हूँ। आप पहले सो रही थी इसलिए ज़रा देर से लाई हूँ। वैसे साहब घर हो तो 5 बजे पी लेते हैं, अब 5:30 बज चुके हैं। वो आते ही एक सांस में बोली, क्या आपके साहब आ गए? मारिया ने पूछा। जी नहीं, आज कोई मीटिंग थी, मगर 3 बार फ़ोन करके आपकी खैरियत दरियाफ्त की है। ओ अच्छा। उसने मारिया को चाय डाल कर दी और ट्राली आगे कर दी, जिसमें चाय के साथ तरह तरह के लवाजमात थे। मारिया को अपनी किस्मत पर रश्क आता, मगर साथ ही दानिया की बातों से खौफ भी। मुलाजमा वापस जाने लगी तो मारिया ने एकदम से उसे आवाज़ देकर रोका। सुने, क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकती हूँ? वो पलटकर मुस्कुराई और बोली, मैम आप सब कुछ कह सकती हैं। जी फरमाइए, बैठ जाएं आप। मारिया ने कहा। जी बेहतर। वो सामने कुर्सी पर बैठकर मारिया की तरफ देखने लगी। वो दरअसल मैंने पूछना था, ज़ीशान साहब कैसे इंसान हैं? मेरा मतलब है आदत और तबीयत के हवाले से। मारिया ने अटक अटक कर सवाल किया। बहुत अच्छे इंसान है मैम, हमदर्द, गरीब परवर। उसने जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब है अगर आप अपने साहब से जिक्र न करें तो मैं ये पूछना चाहती हूँ इस मुल्क में रहकर किस मिजाज के हैं और शादी नहीं की अभी तक? मारिया ने फ़ौरन सवाल कर डाला। मैं समझ गई मैम। वो बोली कि एक बार सर ने मोहब्बत की थी, वो लड़की पैसा खाकर धोखा दे गई, तब से सर को चुप लग गई, शादी के नाम नहीं सुनते। अब जाकर उनकी बहन ने उन्हें राज़ी किया। गालबन आप ही है ना वो लड़की? हाँ हाँ, मारिया ने बामुश्किल कहा। वो दरअसल उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि अयाश तबीयत। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। मुलाजमा ने उसकी बात काटते हुए कहा। सर तो सिगरेट भी नहीं पीते, लड़कियों से दूर भागते हैं। ये सेक्रेटरी खुद सर की दौलत पर मरती है, इसलिए कान भर दिए। वो खुद सर से शादी करना चाहती है। मेरा मशवरा है आप सर को बता दें, इससे पहले वो कोई और गलत फहमी पैदा करे। मैम हमें मुद्दत हो गई सर के साथ रहते, कभी किसी से बुरा सलूक करते नहीं देखा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाँ, उम्र में आपसे कुछ बड़े हैं, मगर 1000 अच्छाइयाँ हो तो उम्र क्या मायने रखती है। आप बेफिक्र रहें मैम। वो मुस्कुरा कर चली गई। मारिया ने एक गहरी सांस ली। उसके दिलो दिमाग से एक बड़ा बोझ उतर गया। उसने सोच लिया पहली फुर्सत में इस दानिया के बारे में ज़ीशान और भाभी को बता देगी। अब वो बहुत पुरसकून थी। चाय की प्याली लिए खिड़की के पास खड़ी बाहर के हसीन नज़ारे देखती वो आने वाले दिनों के ख्वाब बुनने लगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।